So can I start? Yeah, Priya ji, you can start. Yes. Hello everyone, Namaste. I am Priyadarshini, YCB Level 3 Yoga teacher. Welcome you all on behalf of Thane School of Yoga. Today we gather here for a special lecture on stress management through yoga perspective. Today agenda will be, we are having small introduction about the Thane School of Yoga and Vijay Madekar sir and our special guest Mr. Premanand Jain. Okay, now we are starting our program. I hand over to Ayush Pandey. Ayushi Pandey. Ayushi Pandey. Yeah. Namaste. I'm going to sing a bhajan today. गुरु हमारे मन मंदिर में, गुरु हमारे प्राण, सारे विश्व का है वो दाता, नारायण भगवान। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव, श्री गुरुदेव जय गुरुदेव। परमानंद गुरु सच्चिदानंद गुरु, ज्ञानानंद गुरु चिन्मयानंद गुरु। गुरु हमारे तन मन धन है, गुरु हमारे प्यार, ज्ञान भक्ति का वो है दाता, नारायण भगवान। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव, श्री गुरुदेव सतगुरुदेव। परमानंद गुरु सच्चिदानंद गुरु, ज्ञान आनंद गुरु चिन्मयानंद गुरु। गुरु हमारे धन दौलत है, गुरु हमारे प्राण, भक्ति मुक्ति के वो है दाता, नारायण भगवान। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव, श्री गुरुदेव सतगुरुदेव। परमानंद गुरु सच्चिदानंद गुरु, ज्ञान आनंद गुरु चिन्मयानंद गुरु। ज्ञान आनंद गुरु चिन्मयानंद गुरु। थैंक यू। Wow, really very nice, Ayushi Pandey. So next, Nandini Doyle going to sing the song. Nandini ji, you are on mute. आदि में हूँ, अनंत में हूँ, सृष्टि में हूँ, विनाश में हूँ, सुख सागर हूँ, प्राण तरंग हूँ, हर अंग में हूँ, प्रकाश में हूँ, आदि में हूँ, अनंत में हूँ,
भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो राधे गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो राधे गोविंद गोपाला भजो राधे गोविंद गोपाला भजो राधे गोविंद नंदलाला राधे गोविंद कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 गोविंद कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 गोविंद कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे भजो राधे गोविंद गोपाला भजो राधे गोविंद नंदलाला भजो राधे गोविंद गोपाला भजो राधे गोविंद नंदलाला Okay, thank you. हाँ, Wow, प्रिया जी. really nice, superb, Nandini ji. Thank you so much. Yes. So we are now going to see Vijay sir's introduction. Now I am going to introduce Vijay sir, our founder. Vijay Padekar is a founder of Thane School of Yoga. He is also an associated professor of Yoga Mahavidyalaya Baramati. He is a lead examiner of Yoga Certification Board. He is a chief operating officer in approved PRCB Mudra Yoga certificate. He is also presented research paper in AIOC National Conference at Nagpur. So now I'm going to introduce Thane School of Yoga. Okay, Thane School of Yoga provides ancient yoga knowledge and yoga professional teacher training course for Indian students and international students. Has created and taken part of yoga events like 151 Surya Namaskar program, which was recorded in Limca Book of Records 3 times. Thane School of Yoga also conducted special lectures on subject of psychology with reference to both modern and modern perspective of Bhagavad Gita. Thane School of Yoga going to launch new courses, YCB level 4 yoga course and therapy course. So now I'm going to hand over this session to Tanishka and Anushka ji. Anushka, please introduce to guest. Namaste, I'm Anushka Brusle. Namaste, I'm Tanishka Deshpande. And today we are going to introduce Dr. Premchand Jain is a consulting psychiatrist since 1980 and a yoga counselor. रेकॉर्डिंग करायला लागा. विजय सर, आणखीन काही लोक वेटिंग आहेत, जरा कोणी तुमचं असेल त्याला सांगा इन करायला. हो करतोय सर. हाँ, Tanishka, you are muted, I think so. येतोय आता आवाज? या. हाँ.
He owns 30-bedded nursing home with facility for rehabilitation and yoga therapy for patients. He has been awarded the Best Practitioner Doctor Award in 2001 by Nashik IMA. He has completed the Yoga Counselor curriculum from YCM Open University. Since last 20 years, he's been training yoga teachers in the Yoga Krida Prabodhini, of which he is the founder president. He is practicing as yoga therapist for last 15 years, treating various ailments like joint problems, heart ailments, diabetes, and hormonal problems and others. He is examiner, paper setter, member syllabus of Committee of Yoga Teachers of Diploma at YCMOU. He is also an examiner for BA and MA in Yoga Science in North Maharashtra University. He has co-authored of the books for common people titled as Yoga for Beginners in English and in Marathi titled as Prathmik Yoga Sadhana Sarvansati. He has also co-authored textbooks for Yoga Teachers Diploma course. These books are in Marathi as well as in English. He has delivered many lecture series on yoga and psychology in Akashvani Nashik and Akashvani Jalgaon. He has written many articles on psychiatry as well as yoga in many newspapers. He has also conducted and delivered many sessions for public awareness in psychiatry as well as on yoga, and conducted more than 150 workshops on effective parenting. He has delivered more than 200 sessions to students of 10th and 12th standards on Pradnya Samvardhan, stress-free study and examination techniques in various schools. He has presented and read research papers on effects of Yoga Nidra on EEG changes in MBA students at Bangalore and International Conference in Yoga. He has read research paper on yoga and hypertension at MUHS Doctors Conference in Mumbai 2003. He has been conducting yoga teachers training since 2002 till date, and training tutors for yoga teachers since 2008 onwards regularly. He created Yoga Nidra, English and Marathi Sutra Pathan for yoga teachers course, pranayam practice, Omkar chanting series. He has successfully trained 5 batches of QCI, Ayush Department of Government of India, level रिकॉर्डिंग कर रहे हो with success rate more than 80%. ओपन करना की रिकॉर्डिंग के करना भी तदा हुई गए हाँ येस येस प्लीज झाले का इंट्रोडक्शन झालेलं आहे Yes, ओके sir. सर ओव्हर टू यू सर डॉक्टर प्रेमचंद जैन Thank you, sir. Please see that few are waiting in waiting room. Yes, They sir. can Yes, get- sir. I am increasing the number because the number is 100 only. So they are waiting. I am increasing the number of participants. Soon we will see how to manage them. Okay, please. Okay. Okay. Before Hari Om to all, I will start with the prayer. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. फोन मला येत आहेत ठीक आहे आता काय करू शकत नाही त्याला आपण सुरू करूया तुम्ही फोन स्विच ऑफ केलं तर बरं पडेल हरकत नाही ओके हा प्लीज नाही इलाज नाहीये का रेकॉर्डिंग तुमचं चालू आहे येस येस रेकॉर्ड इज गोइंग ऑन ओके ठीक आहे shall I talk in Hindi, Marathi, English? What language will be preferred? हिंदी मराठी Sir, Hindi, please. Okay, mix चलेगा. सर मुंबईया भाषा इज द बेटर इंग्लिश हिंदी मराठी गुजराती कन्नडा तमिळ wherever required English, wherever required English, wherever required Hindi, wherever Marathi. हिंदी ठीक है सर. सर Okay, no problem.
सभी का इस सेमिनार में स्वागत है. First of all, I must thank Vijay ji for giving me the opportunity to talk on the subject of stress management through yogic ways. Now, before we start, what is the stress and how to manage, that we will discuss. So what is stress? Anybody? Because if everybody is here for listening the stress management, you must be knowing. तुम्ही ऑनलाईन राहणं ते चालू करतायत, काहीतरी करतायत ते. विजयजी, माझा फोनच तुम्हाला एक सॉरी, मोबाईल कडे लक्ष देऊ नका आता. तुम्ही आपलं चालू ठेवा. मी एक काम करतो, मी लाईव्ह फेसबुक वर आणण्याचा प्रयत्न करतो. हा, थोडस तो प्रयत्न केला. या प्लीज प्लीज, करतो. त्यांना लाईनवर राहायला सांगा ना, येतील तर. करताय काही प्रयत्न? करतोय प्रयत्न करतोय. तुम्ही सुरू करा सर. ओके. नाही, कारण ते फोन येत आहेत माझ्याकडेच. नाही, मी लाईव्ह करतोय आता, लाईव्ह करतोय. ओके. फेसबुक लाईव्ह वगैरे काहीतरी करतायत ते. ठीक आहे. तो व्हॉट इज स्ट्रेस? दॅट स्लाइड दिखता है क्या? कैन यू सी द स्लाइड्स? यस सर. हाँ सर, दिसते सर. ओके. एक मिनट, मेरा कुछ गड़बड़ है. एक सेकंड जस्ट. Okay. So I have designed my talk according to YCB syllabus. Level 3 में जो कुछ दिया है 4.13, 14, 15. These 3 points I am going to cover in this my lecture. First, we will see what is the definition. What makes you stressed? What is the stress? It is a common condition. हमेशा हमें दिखता है. हम बोलते भी बहुत तणाव में है, ताण है. मराठीत सांगितलं तर ताण आहे, मी तणावात आहे वगैरे असं म्हणतो. तर त्याचा अगदी सोप्या भाषेत अर्थ की इट इज अ कंडिशन इन युअर बॉडी विच इज अनप्लेझंट when you are facing any situation or thought. So stress is a common condition response to the physical threat or psychological distress that generates host of chemical and hormonal reactions in your body. In essence, the body prepares for fight or flight. और ये जो fight और flight है, इसके बारे में मैं और थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा. बहुत से लोगों को पता भी होगा शायद. So what it does is pumping more blood from the heart to the system and shutting down all non-essential functions. जो पचन वगैरह जो है वो कम, डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लड कम कर देता है. Modern definition is it is a maladaptive response, which is not a good response. It is a maladaptive and characteristic to the individual concerned. It is different from everybody. It will be different. Somebody under stress will have digestive or gastrointestinal problem. Other will have the heart problem. Third will have the respiratory problem, and so on. So
it is individual concern to his overpowering and perceived psychophysiological and bioecological demands. So everybody's response pattern will be different. Now, what is the yogic definition? We'll see all definition first. So state of psychophysiological imbalance, असमन्वय, असंतुलन. तर संतुलन कुठं पाहिजे, तर तुमचं मन आणि शरीरातले जे काही वेगवेगळे फंक्शन्स आहेत, सायकोसोमॅटिक त्याला आपण म्हणतो. तर इम्बॅलन्स एक्सपिरियन्स ड्यू टू द आयडेंटिफिकेशन विथ वन्स मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड and emanating from our existential applications Patanjali, according to Patanjali, are kleshas, and precipitated by social environment and psychophysiological response pattern. The same thing, which is the modern definition, कि क्लेश उत्पन्न झाले, अगर हमें पतंजलि के अनुसार जो भी कोई क्लेश उत्पन्न होता है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, और यही क्लेश हमारे शरीर के रिस्पॉन्सेस अलग कर देता है, दूसरे कर देता है जो नॉर्मल नहीं है, तो उन्हें स्ट्रेस कहा गया है. तो अकॉर्डिंग टू योगा, imbalance will lead to the miserable condition. And emotional imbalance, why there is an emotional imbalance? Because of rag and dvesha, likes and dislikes. जेव्हा जेव्हा तुम्हाला राग आणि द्वेष म्हणजे आसक्ती किंवा अनासक्ती निर्माण होते, तेव्हा तेव्हा तुमच्या शरीरातलं आतलं बाहेरचं शरीर आणि मनाचं संतुलन बिघडतं, आणि ते संतुलन बिघडलं की ताण तणाव निर्माण होतात. The imbalance will lead to the conflicts. Conflicts will lead to egocentric, petty behavior, which is not socially acceptable. त्या behavior प्रमाणे जर तुम्ही वागायला लागला की ताण निर्माण होणार. And imbalance is again due to the lack of holistic knowledge and balanced outlook. When you are unable to face the situation, the stress will dominate. Again, according to Patanjali or yogic sciences, कि प्राणमय कोश and मनोमय अन्नमय कोश यांच्यामध्ये इम्बॅलन्स, असंतुलन झालं तरी ताण निर्माण होणार. इम्बॅलन्स सुरुवात होणार अविद्येने. अविद्या तुमचं विज्ञानमय कोश, पंचकोश आपल्याला माहिती आहे, तर विज्ञानमय कोश बिघडवेल. In turn, विज्ञानमय कोश will act on manomay kosh. Manomay kosh will transfer all these stresses to the pranamay kosh, and expression of the kosh, expression of the stress will be done by annamay kosh, your external or physiological body. So this is again according to Patanjali. Again, आपल्याला पतंजलीची योगाची व्याख्या किंवा योगाचं दुसरं सूत्र जे आहे पहिल्या पादातलं, योग चित्त वृत्ती निरोधः. चित्तातल्या वृत्तींचा निरोध झाला की योग सिद्ध होतो, पण जर वृत्तींचा निरोध झाला नाही तर क्लेश निर्माण होणार, हेही आपल्याला माहिती आहे. तर म्हणून तिथं क्लेश, जर तुम्ही क्लेश रहित झाला किंवा वृत्तींचा निरोध झाला, तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम. So originally human being is a stress-free, blissful creature or human being, आणि टेन्शन नाही, प्रेशर नाही, काही नाही आहे, नॉलेज आहे, क्रिएटिव्हिटी आहे, फ्रीडम आहे. तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम मध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी आलेल्या आहेत. आणि पतंजली त्याला स्वस्वरूप किंवा सेल्फ, टू बी इन द सेल्फ,
आणि ते जर झालं तर यू आर स्ट्रेस फ्री. अदरवाइज अकॉर्डिंग टू अगेन पतंजली सेकंड चॅप्टर साधन पादामध्ये सांगितलेलं आहे की क्रियायोग का करायचा आहे, तर समाधी भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थ. आणि क्लेश का निर्माण होतात ते आपण परत पुढे बघणार आहोत. आता मी एवढंच सांगतो. सो व्हॉट इज स्ट्रेस नाऊ एवढं सगळं बघितल्यानंतर इन शॉर्ट stress is a wear and tear of our body experience, state of threatened homeostasis. Homeostasis is internal atmosphere of your body, how your bodily functions are going on, whether they are normal or abnormal. So it is a state of threatened की तुम्हाला धक्का बसलेला आहे किंवा तुमचं अंतर्गत सिस्टीम जी आहे ती व्यवस्थित काम करत नाही. मग हार्ट काम करत नाही, लंग्स काम करत नाही किंवा डायजेस्टिव्ह सिस्टीम काम करत नाही. आणि ते सगळं काय होतं तर स्ट्रेसर कॉज इम्बॅलन्स आणि बॉडी ट्राईज टू बॅलन्स. मग ह्या दोघांमध्ये जो जिंकेल त्याप्रमाणे तुम्ही किती स्ट्रेसफुल आहात किंवा स्ट्रेस फ्री आहात हे तुमचं ठरणार आहे. आणि योग is the best remedy for treating the imbalance, psychological as well as physiological, and that's why we are going to talk something about the yogic way. Now, this is the situation today. Like or do not like, we encounter stress every day. आपण नेहमी म्हणतो की आजचं जग स्पर्धेचं आहे, कॉम्पिटिशनचं आहे. एव्हरी टाइम वी से वी आर स्ट्रेस डे इन आउट. आर वी टेल मी जस्ट, do you agree with this my statement कि we are stressed day in and day out, or we are more stressed than our ancestors? Yes, please. Yes, sir. I would like to Yes, have sir, your more response. stressed than our ancestors. More stress than Yes, yes. ancestors. Yes, sir. Yes, sir. Yes, I agree. Everybody says like this. Everybody agrees. Yes. sir. I don't not agree. agree, sir. I don't agree. I'm also, sir. Who said I am also? Just Yeah, Sunita. Sunita. Just tell me why you are not agreeing. Because that time so many insecurities were there that today जैसे अभी साधन सामग्री विपुल है. You can talk in English, Hindi, Marathi, no problem. आज के जमाने में इतने सारी भौतिक सुविधाएं हैं और जो पहले जमाने में उनको बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती थी. और जितनी सुविधा आपके पास है उतने प्रॉब्लम वो हर सुविधा के भी है. आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी चले गई तो क्या प्रॉब्लम आता है. आपका वॉशिंग मशीन है, टीवी बिगड़ गया तो प्रॉब्लम आ जाता है. जो भी कुछ आपके पास जितनी सुविधा है वो आपको ज्यादा से ज्यादा असुविधा देती है. anyway. हाँ ठीक है वो तो. हाँ. लेकिन पहले जमाने में खाने का जो खेती उगती नहीं थी उतनी, इतनी सारी बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती थी उनको. एक मिनट आई डिसएग्री विथ यू कि उस जमाने में ज्यादा धन धान्य होता था. एवरीबॉडी वाज हैप्पी दैट टाइम. नाउ सी आई विल गिव यू वन एग्जांपल कि पुराने जमाने में भी और आज के जमाने में भी ताण तनाव उतने ही थे. ओनली थिंग is the nature of your stressful factors is different. पूर्वीच्या काळी सुद्धा तेवढेच ताण तणाव होते जेवढे आज आहेत, फक्त स्वरूप बदललेलं आहे. अब मुझे बोलिए,
राम जिस दिन उसका राज्याभिषेक होने वाला था, उसके पहले रात को उसको बोला गया है कि नाउ फॉरगेट अबाउट द किंगडम, गो टू द वनवास, जंगल में जाओ, और 1-2 दिन नहीं तो 14 साल जाने का है। इज इट ए प्लेजरेबल सिचुएशन? अगर आपको बोल दिया कल आपके घर में कोई अच्छा फंक्शन होने वाला है और रात को पुलिस आकर आपको उठा के लेके जाती है, तो कितना स्ट्रेस होगा आपके घर में? बहुत सारा, बहुत सारा होगा। वही तो राम का हुआ होगा ना? या एब्सोल्युटली। दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं, पुराने जमाने का ही। सीता का स्वयंवर हुआ या किसी का भी स्वयंवर पूछ लो, उस जमाने में स्वयंवर वाज ए कॉमन थिंग। स्वयंवर राजकन्या एक होती थी, वहां आने वाले 50-100 लोग होते थे, एक को वरमाला वो डालती थी, बाकी 99 जो थे वो क्या आराम से आनंद से जाते थे क्या? चलो भाई हमारा आए थे यहाँ देखने। एवरीबडी वाज वांटिंग दैट राजकन्या, प्रिंसेस। तो उस जमाने में भी तान तनाव उतने ही थे जितने आज है, मगर फर्क जो है, व्हाट इज द डिफरेंस? नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डिफरेंस। उस जमाने में गुरुकुल में जब कोई भी विद्यार्थी जाता था तो उसको, आज आप में से बहुत से लोग YCB 2-3 किए हुए हैं, करने वाले हैं, तो आपको पता है गुरुकुल सिस्टम में क्या होता था। रोज की शिक्षा के साथ में योग की शिक्षा उनको अपने आप मिलती थी, इसलिए वो जो भी कुछ तान तनाव, स्ट्रेसफुल फैक्टर्स जो भी कुछ होते थे, उनका आनंद से सामना कर सकते थे। और आज हमारे यहाँ योग is disappear from our life, and that is the reason we feel that new generation is more stressful, new era is more stressful. अब मैं बोलता हूँ, मेरे जमाने में भी मैं बोलता था, अब I am 70 now, फिर भी अभी मेरे बेटे पोते भी बोलते हैं कि दादाजी तुम तो बहुत खुश थे, सुखी थे, आज हमको कितना भाग दौड़ करना पड़ता है सवेरे से उठकर। और ये जो है, एवरीबडी इज एक्सपीरियंसिंग, टेक द चाइल्ड टू द ओल्ड एज। छोटा बच्चा है, वो रोता क्यों है? उसको लगता है माँ अपने को पानी, अपना दूध पिलाएगी, नहीं पिलाएगी। स्कूल में जाता है तो स्कूल में जाना है तो बस आएगी, रिक्शा आएगी, नहीं आएगी, उठना मुश्किल है, पेरेंट को भी तकलीफ, उसको भी तकलीफ। बच्चे रात को टीवी देखते हैं, लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, स्कूल में उसको भेजना है, रिक्शा नहीं आया, टैक्सी नहीं आया, गाड़ी नहीं आया, बस नहीं आया, तो आपको उठ के जागना पड़ता है, उसको स्कूटर से, गाड़ी से स्कूल में छोड़ना पड़ता है, ऑफिस जाना है। आपके बम्बई में है तो सब लोगों को लोकल पकड़ना है, ये सब जो कोई है, दीज आर ऑल स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। आई डोंट एग्री। बच्चे को लो या आपके घर में से लो, किसी को भी लो, एवरीबडी इज स्ट्रेस्ड एंड दैट स्ट्रेस इज मेकिंग आवर लाइफ डिफिकल्ट। तो ये सब स्ट्रेस कैसे ये करना है, तो उसके लिए आगे हम बढ़ते हैं कि ये मैंने बोला है कि लाइक इट और नॉट, यू आर एनकाउंटरिंग स्ट्रेस every day. Now, before going to the next solution, this is one statement: stress is universal, सर्वव्यापी है। जैसा हम बोलते हैं आत्मा सर्वव्यापी है, चैतन्य सर्वव्यापी है, उसी प्रकार stress is also universal, and there is a positive stress and negative stress. What is the positive stress? It is called as a eustress, and negative stress is called as a distress. Eustress makes you work harder and get more benefit.
It is rewarding. It challenges to adapt and grow, and it is essential to work. आप में से बहुत से लोग लेवल 2, 3 MA के एग्जाम देने वाले हैं, उसमें आपको ये टॉपिक है ही, तो इसके लिए आप आए हैं काम धंधा 2 दिन के लिए 3 घंटा 6 घंटा 3-4 घंटा छोड़ के इसके लिए आए हैं, तो ये आपको ये जो स्ट्रेस है ये रिवॉर्डिंग स्ट्रेस है, इसलिए आप यहाँ आए हैं। उसके अगेंस्ट एज ए नेगेटिव स्ट्रेस, उसको डिस्ट्रेस कहा गया है, और ये डिस्ट्रेस आपकी एनर्जी कम कर देता है, आपकी शक्ति कम कर देता है, और आपको अनईजी फीलिंग्स, बीमारी जैसा फीलिंग, डिसईज, यू आर नॉट एट ईज, तो ये सब डिस्ट्रेस से होता है। तो इसीलिए उसके लिए मैंने जो शुरू में बोला था, दिस इज अ रिएक्शन टू द स्ट्रेस, आइदर यू फाइट विद द स्ट्रेस और यू रन अवे, लड़ो या भाग जाओ। आपको शायद सभी को पता है स्ट्रेस में ये फाइट एंड फ्लाइट, मैं हमेशा मेरे क्लास में एग्जांपल देता हूँ। आप रास्ते से, सांप का उदाहरण अभी नहीं है सांप, इसलिए मैं अभी दूसरा उदाहरण देता हूँ। किताबों में सांप का उदाहरण दिया है, स्नेक आया तो क्या करोगे, यहाँ मैं उदाहरण देता हूँ। आप रास्ते में अर्ली मॉर्निंग घूमने जाते हो, कुत्ता आपके पीछे लग गया तो क्या होता है? एक, आप उसको पत्थर या कुछ डंडी आपके पास में होगा तो उसको मारकर भगाने की कोशिश करते हो, दूसरा खुद भाग जाते हो। तो ये दोनों चीजों में आपके शरीर में स्ट्रेस, तनाव निर्माण होता है, और जब जब आपके शरीर में तनाव निर्माण होता है तो क्या होता है? तो आपके शरीर में तनाव निर्माण करने वाले और तनाव का सामना करने वाले हार्मोन्स तैयार हो जाते हैं, इन्हें हम एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन कहते हैं। ये एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन तनाव निर्माण करने वाले, तनाव के सामना करने वाले, हमारे शरीर को शक्ति देने वाले हार्मोन्स है। अगर आपको कुत्ते को पत्थर से मारना है या डंडे से मारना है, हाथ में ताकत चाहिए, या भागना है आप दौड़ जाओगे तो पैरों में ताकत चाहिए, दोनों जगह ताकत चाहिए। तो वहाँ के जो मसल्स है, स्नायु है, उनको ज्यादा ब्लड, और उस ब्लड के माध्यम से उन्हें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेगा ताकि स्नायु काम कर सके। अब अगर उनको ज्यादा ब्लड चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड हार्ट रेट बढ़ेगा, फिर ज्यादा उसको ग्लूकोज चाहिए तो लीवर को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, ये सब सिस्टम। और उसी वक्त आपके पचन संस्था को कम ब्लड जाएगा क्योंकि ज्यादा ब्लड यहाँ चाहिए। तो ये सब सिस्टम से एनीबडी क्या ये, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। Okay, whether somebody is trying to tell me something by making some sketches over here. Who did this? What? ये आपके पास से होगा सर? नहीं, मेरे पास, I am not touching even. If somebody is doing that, I don't know. ठीक है, आप बैक जाइए, फिर से वापस आइए इसके ऊपर। Okay, no problem. तो जो मैं बोल रहा था, तो ये जो चेंजेस आपके शरीर में होते हैं, कुत्ता आपके पीछे लगा, आप कुत्ते से डर गए, या कुत्ते से झगड़ा कर रहे हैं, या उस कुत्ते से फाइट कर रहे हैं, तो ये जो चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस द मोमेंट आइदर डॉग रन्स अवे और यू आर इन द सेफ प्लेस, देन करके आप सेफ्टी फील करते हो। और ये सब जो चेंजेस आपके शरीर में होता है, हार्ट रेट बढ़ा होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ होता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ था, ये सब चेंजेस कम बैक टू द नॉर्मल
लेवल, और ये अगर नॉर्मल लेवल में नहीं आते हैं तो फिर साइकोसोमैटिक इलनेसेस आपके शरीर में तैयार होने शुरू हो जाते हैं। वो क्या है वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। जब मैंने आपको बोला था स्ट्रेस एंड स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस, इसके लिए ये स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस कर्व मैंने निकाली है। इसमें यह है परफॉर्मेंस आपका बढ़ता है और स्ट्रेस लेवल बढ़ती है। तो जब अगर स्ट्रेस लेवल यहां तक बढ़ाते हैं आप तो आपका परफॉर्मेंस बढ़ते जाता है। अगर आपको मैंने बोला कि इतना आप स्टडी करोगे तो आपको 70% मिलेगा, तो आप यहाँ तक बराबर 70% के लिए स्टडी करते हैं। फिर मैंने बोला अगर और थोड़ा पढ़ोगे तो 80% आपको मिलेंगे। अगर आपके कैपेसिटी 80% को मिलाने की, तो आप तो यहाँ तक तनाव करके, ज्यादा अभ्यास करके, ज्यादा 2-4 घंटे ज्यादा करके, इतना स्टडी करके आप यहाँ तक 80% तक जा सकते हो। फिर मैंने आगे बोला कि और थोड़ा करोगे तो 90 मिलेगा, तो आपका परफॉर्मेंस शुरू होता है गिरने के लिए। इट ड्रॉप्स एंड सडनली यू विल ब्रेक डाउन एट दिस लेवल। सो यहाँ आप इनएक्टिव होते हैं, थोड़ा सा तनाव बढ़ता है, यहाँ आपको पूरा फटीग यानी थक जाते हो, इतना थक जाते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो और आगे कुछ नहीं कर सकते हो। तो एंजाइटी और पैनिक या गुस्सा आपको आने लगता है कि मैं कितना कर नहीं सकता हूँ क्या, मैं क्यों कर रहा हूँ, इतना आपको गुस्सा आता है। तो ये जो है ये ऑप्टिमम स्ट्रेस, येलो लाइन, येलो जो सेगमेंट बताया है, दैट इज ऑप्टिमम स्ट्रेस। यहाँ आप काम या आपका परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो। अगर ये स्ट्रेस बढ़ गया, टू मच हो गया, तो नारंगी रंग का जो है वो आप एक्झॉस्ट हो जाते हो, पूरे थक जाते हो, मरगळ येते असं आपण म्हणतो, आणि बर्न आउट म्हणजे काहीही करू शकत नाही, हातपाय तुमचे गळीत झाले असं आपण जे काही म्हणतो, मला काहीच करता येत नाही, आणि अशा परिस्थिती आपण अनेक वेळा अनुभवलेल्या आहेत। तर हे सगळं जे आहे की परफॉर्मन्स आणि स्ट्रेस यांचं रिलेशन काय आहे ते या ग्राफ मध्ये दाखवण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे। आता ताण तणाव सहन करायचा असेल तर एक चित्र मी तुम्हाला दाखवतो। या चित्रात तुम्हाला काय दिसतं ते बघा। काय दिसतंय, एक दोन जणांनी सांगा मला की व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस फिगर। आय हॅव टेकन अ फोटोग्राफ। खिडकी आहे, त्याच्या काचा तुटल्या। There is a wall with the window pane broken. Now what is the significance? बाहेरून कुठेतरी मारले करताना। Anger. Anger, okay. Frustration, maybe. Frustration, anger. It sir also signifies that the windows are open, so any kind of dust and dirt will get into the house. Very good. What else? This is related to our mind. आणि जर आपण मन आणि बुद्धी व्यवस्थित वापरली नाही तर हे असे गोष्टी होऊ शकतात। सो जे काय आता जसं तुम्ही सांगितलं की खिडक्या उघड्या आहेत आणि डस्ट अँड डर्ट येऊ शकते, तसंच आपल्यामध्ये टॉक्सिन्स भरपूर, मनातले टॉक्सिन्स जे आहेत ते भरपूर येऊ शकतात। व्हेरी गुड। मला नवीन नवीन गोष्टी कळायला लागलेल्या आहेत या चित्रावरनं। सर प्लीज हिंदी एंड इंग्लिश, सम पीपल आर हिंदी एंड इंग्लिश, सो प्लीज। मैं हिंदी इंग्लिश मराठी तीनों, आई एम ट्राइंग टू टॉक इन ऑल 3 लैंग्वेजेस। अगर आपको कुछ वर्ड के बारे में प्रॉब्लम है तो यू कैन टॉक इन बिटवीन। दैट्स व्हाई आई एम कम्युनिकेटिंग। दिस शुड बी नॉट बी ओनली लेक्चर, इट इज अ डिस्कशन। ओके, माझा उद्देश, मेरा उद्देश जो है, माय एम टू शो दिस पिक्चर इज, you can see the windows और खिड़कियों का कांच टूटे हुए हैं।
अब कांच क्यों टूटे हुए हैं? किसी ने पत्थर मारा इसलिए कांच टूटे हुए हैं। अब ये पत्थर मारना इज इक्विवेलेंट टू एवरीडे स्ट्रेस. नाउ why only the window panes or glass panes are broken and why not there is a hole as you see in the windows? ब्रिक वॉल में या पत्थर की दीवार में वो क्यों नहीं है? सिंपल आंसर इज whether you want to become a window pane or a wall. That is what the aim of my topic is. तान तनाव हमेशा रहने वाले हैं. You have to remain like a wall where you can face any situation. दूसरा एक मेरे पास पिक्चर था पर मेरा कंप्यूटर बदल गया, इसके लिए वो आई एम अनेबल टू गेट. I had visited Lakshadweep 10 years ago and I saw on the seashore one नारियल का झाड़, coconut tree, which was because of the heavy winds or something, it was just uprooted. Only 5 or 10% of the roots were there and it was lying straight on the floor. जमीन पे उसको लगा हुआ था, मगर उस 5-10% जो उसके मूलियां थी उसके ऊपर वो जिंदा था और बाद में ऊपर की ओर बढ़ा हुआ था, ऐसा नीचे और फिर ऊपर आ गया था ऐसा. तो ये क्यों हुआ? तो जीने की उसकी तमन्ना थी. सागर में जितना भी कोई तूफान आता था, तूफान से लड़ने की और उसका सामना करने की तमन्ना उस पेड़ में थी. तो वही हमें योग सिखाएगा. तो इसीलिए ये 2-3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं. तो फिजियोलॉजी ऑफ द स्ट्रेस में क्या होता है? स्ट्रेस मैंने आपको समझाया भी है कि हार्मोनल सिस्टम जो है वो बिगड़ जाती है आपके एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रारेनल ग्लैंड से. एड्रेनलिन और एड्रेनलिन ज्यादा सिक्रीशन होता है. वो क्यों होता है? तो एक्सटर्नल इवेंट इज अ थ्रेट टू योर आईज और whatever may be, your ज्ञानेंद्रिय will accept कि there is some threat and the response is a fight or flight. ये दोनों चीजें यहाँ बताई हुई है. तो क्या होता है? एड्रेनलिन और एड्रेनलिन बढ़ गया तो हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, फैट ग्लूकोज रिलीज बढ़ता है, ब्लड फ्लो नॉन एसेंशियल पार्ट से निकल जाता है. ये सब चीजें मैंने बताई है. उसके बाद में थ्रेट अगर निकल जाता है तो एसिटिलकोलिन और एड्रेनलिन और एड्रेनलिन का लेवल कम हो जाता है और बॉडी बिकम्स टू अ नॉर्मल लेवल और टू ओरिजिनल लेवल एक्सेप्ट करते हैं ये इसके लिए. तो ये सब चेंजेस होने के बाद में अभी यह देखिए कि स्ट्रेस इटसेल्फ विल नॉट किल यू. इट इज द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेस दैट किल्स यू. सो शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म effects of the stress we must study and understand कि what are the short term. तो short term में बोला भी हम ओके. शॉर्ट टर्म यानी कोई भी आपके पास सिचुएशन ऐसी आती है, कोई भी आपके मन में विचार आता है, तो फॉर शॉर्ट टर्म 2-4 घंटा, 1-2 दिन, depending on the level of the stress, you should come to the normal stage. If it remains for long term, समझो आपको 500 रुपए का नोट गुम गया तो 2 दिन आपको बुरा लगेगा. मगर 500 रुपए का नोट गुम गया, महीना भर अगर आप मेरा 500 रुपए चला गया, मेरा 500 रुपए चला गया, कैसे होगा, क्या होगा, ऐसे करते रहे तो दैट इज ए wrong or distressful situation. अभी ये सब करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है. अभी यहाँ आपको 2 वर्ड्स जो है
उसमें समझना होगा दिस इज ए ताण तनाव नियोजन है, निर्मूलन नहीं. It is not the stress eradication program. It is a stress management program. That's why I told initially only कि stress, whether you like it or do not like it, it is going to remain with you, whether you are in this era or whether you are 1,000 years ago. Only thing is stress factors और stress जो ये थे वो अलग अलग है, तरह अलग अलग है, मगर तनाव तो वही है. तो at the same time you are psychological, psychosocial being, individual. With this D3, T3, somebody I am seeing here. कोण आहे ते त्याच्या मध्ये येते बघा तुम्ही. Just try. Then individual and social harmony. You can stop this PPT and after that you can share it. Okay. Okay. I should. Yeah. Okay. Yeah. Now is clear. Okay. ठीक है. I request all, do not play with this. I do not know what I'm not that techno savvy, so I don't know understand what is somebody is doing that. So you are at the same time psychosocial being, universal and bioecological being, and spiritual being. You are existing at these three levels. So social harmony and individual harmony has to be there. Universal and bioecological, all these वातावरणाचं जे काही आपण म्हणतो आहे पर्यावरण, ते सगळं आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे. स्पिरिच्युअलिटी लक्षात घ्यायची आहे. त्या स्पिरिच्युअलिटी मध्ये सत्स्वरूप, देन चित पदार्थ, आनंद पदार्थ, मुक्त स्वरूप आणि ईश स्वरूप, हे वेगवेगळे गोष्टी येणार आहेत. त्याच्यावर अपन नंतर विचार करणार आहोत. उसके बाद में हम उसके बारे में सोचेंगे. तो at 3 level you are receiving the stresses or analyzing the stresses. So stress management करने के लिए there are various things we have to take into consideration. Stress कम करना, एक, हमारे पोटेंशियल बढ़ाना, दो, बायो इकोलॉजिकल सिस्टम से एडजस्टमेंट करना, तीन, और प्रसाद स्पिरिचुअलिटी, उससे हमारी खुद की शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति ही बढ़ाना, कि साक्षी भाव जिसे अध्यात्म में बोला गया है. ताण तणाव येतील त्यांच्याकडे आपल्याकडे नाहीत अशा पद्धतीने साक्षी भावाने ते बघणं. तर ह्या सगळ्या गोष्टीवरनं तुम्ही यू कैन मैनेज योर स्ट्रेसेस. तो एक एक चीज अब हम देखते हैं. That we have discussed. Now stress will act at the 4 levels: body, mind, behavior and emotions or bhavana. बॉडी लेवल पर जो सिम्टम्स हम देखेंगे वो है फटीग, हेडेक, स्किन रिएक्शंस, frequent infections, breathlessness, tight muscles, head aches and pains and muscle twitches. माइंड लेवल पर देखेंगे वरिंग, hasty डिसीजन लेंगे तो गलत डिसीजन, और गलत डिसीजन लेंगे तो जजमेंट आपका खत्म बराबर नहीं होगा. जजमेंट बराबर नहीं है तो थिंकिंग भी बराबर नहीं होगा, फिर नींद बराबर नहीं आएगी, निगेटिविटी होगी, इनडिसिसिवनेस होगा. So this is all chain of reaction that will affect your mind. And then your behavior,
इंसोम्निया यानी नींद नहीं आएगी, निद्रा नाश होगा, ऍक्सिडेंट प्रोननेस बढ़ जाता है. ताण तणावामध्ये ड्रायव्हरला चिडवलं, ड्रायव्हरचं गाडीवरचं कंट्रोल गेलं तर काय होतं हे आपण बघितलेलं आहे किंवा आपण अनुभवलं किंवा कल्पना सुद्धा करू शकतो आहोत. तर ऍक्सिडेंट प्रोननेस इन्क्रीजेस. मग लॉस ऑफ ॲपेटाईट, लॉस ऑफ सेक्शुअल ड्राईव्ह, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग और रेस्टलेसनेस और व्यसनाधीनता, addictions will increase, and we find shortcuts to get the pleasure or get away from the stress, but it will increase your stress more. इमोशन के बारे में देखेंगे तो इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़पना, गुस्सा ज्यादा आ जाता है, डिप्रेशन, नैराश्य आ जाता है, आत्मविश्वास कम हो जाता है, हट्टी बन जाते हो, अपैथिक यानी रिस्पॉन्स भी कभी नहीं देते हो. इस तरह से अलग अलग सिम्टम्स आपको 4 लेवल्स पर देखने को मिलेंगे और इसे मैंने एक ही स्लाइड में लाने की कोशिश की है, बाकी एक एक धीरे धीरे देखेंगे. अभी तो माइंड पर क्या होता है, व्हाट इज माइंड, इसके बारे में अब थोड़ा साइकोलॉजी के बारे में बोलते हैं. व्हाट इज अ साइकोलॉजी? एनीबडी? Concept of psychology? It can be a science of mind, behavior. So what is the science of mind now? It is science of behavior. That is a addition to that. Previously it was a science of mind, but nobody knows what mind is, where mind is. So how you will study? So somebody becomes cardiologist. That means he knows everything about the heart. That's why it is called an expert or specialist in cardiac problems. Somebody is a diabetologist, so he knows everything about diabetes. So heart you can study because you can see various way, living or dead heart, सब ठीक कि कैसे फंक्शन करता है, क्या होता है, उसका फिजियोलॉजी क्या है, कब क्या होगा, उसका ब्लड सप्लाई क्या होगा, ये सब आप स्टडी कर सकते हैं. वैसा माइंड कहाँ है ये आपको पता ही नहीं है, तो उसका स्टडी कैसे करोगे? सर बिहेवियर से कर सकते हैं. हाँ, तो बिहेवियर कहाँ से आती है? तो माइंड से आती है, आपके थिंकिंग से आती है. वॉट एवर यू थिंक, इट इज एक्सप्रेशन ऑफ योर थिंकिंग, एंड दैट्स व्हाई यू स्टडी इनडायरेक्टली द माइंड बाय योर बिहेवियर. दैट्स व्हाई नाउ साइकोलॉजी, ये वर्ड इज गोइंग अवे एंड बिहेवियरल साइंस ऐसा उसका नाम बना रहा है. तो व्हाट इज माइंड? जो मराठी जानते हैं त्यांना बहिणाबाई माहिती आहे. मन वढाय वढाय तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांना माहिती असेल. तर त्या अशिक्षित बाईने मनाचं वर्णन इतकं चांगलं केलेलं आहे. मन वढाय वढाय किती हाकला, फिरी येत पिकावर. तो मन वढाय वढाय उभ्या पिकातलं ढोर, किती हाकला हाकला, ठीक आहे. मला तुम्ही हो 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 मला दुरुस्त केलं, धन्यवाद. माझं पाठांतर कमी आहे. उभ्या पिकातलं ढोर फिरी येतं पिकावर, ते जे काही आहे. तर त्याप्रमाणे मन परत तिने सांगितलंय, आता होतं इथं भुईवर गेलं आभायात, खसखशी एवढं आणि आभाळा एवढं, अशा बऱ्याच तुलना, इतके दिसणार नाही, काही दिसणार नाही, अशा बऱ्याच तुलना तिने केलेल्या आहे. आणि एक तुलना जी आहे, एक जो कंपैरिजन उसने किया हुआ है फॉर नॉन मराठी पीपल, कि यानी सर्पदंश अगर होता है, स्नेक बाइट होता है, तो उसके लिए भी दवा है, मगर आपके मन में अगर दंश हो जाए उसके लिए कोई दवा नहीं है.
बरोबर आहे का? ज्यांनी कोणाला ती कविता पाठ असेल त्यांच्यासाठी. येस येस सर. हा अरे साप विंचू बरा त्याला उत्तरे म्हणतात. हो हो, माझी कविता पाठ नाहीये, त्यामुळे मी फक्त अर्थ सांगू शकेल किंवा त्यातला मतितार्थ सांगू शकेल. तर अशा ह्या मनाला वळवायचं कसं? बऱ्याच वेळेला मराठीत मध्ये बोलतो आहे की कळतं आहे पण वळत नाही. सगळ्या काही गोष्टी आपल्याला कळतात की हे ताण आहे, तणाव आहे, मला शांत राहिलं पाहिजे वगैरे वगैरे पण म्हणतो, पण ते कसं करायचं हे मात्र आपल्याला कळत नाही. ते कसं करायचं ते आपण थोडस त्याच्यावर चर्चा करणार आहोत की व्हॉट इज माइंड इज अ कॉंग्लोमरेशन ऑफ द थॉट. विचारांचं जो काही गोंधळ आपण म्हणतो, तर आय डोंट नो व्हॉट यू वुड लाईक कि one thought is one unit of the mind and there is a continuous flow of thoughts in your mind. As you see the waves in the ocean, sometimes these waves are very smooth and nice, but at times you can see what you can see in the hurricane. उंच उंच लाटा, अगदी राक्षसी लाटा ज्याला आपण म्हणतो त्याप्रमाणे त्या दिसतात. त्याचप्रमाणे तुमच्या मनातही विचार कंटिन्युअस चालू आहेत, मात्र त्या विचारातलं अंतर वाढवणे, अभ्यास आणि वैराग्य हे जे जो पतंजलीने जे सांगितलेलं आहे ते मी या पद्धतीने सांगतो. तुमच्यापैकी काही लोकांना ते माहिती असेल, काही लोकांना माहिती नसेल. थोडक्यात मी सांगण्याचा प्रयत्न करतोय की अभ्यास करायचा आहे. और यू व्हॉट अकॉर्डिंग टू पतंजली हाऊ टू अचीव द निरोध ऑफ वृत्ती. So Patanjali says two things, abhyas and vairagya. अभ्यासेन तू वैराग्येन, गीतेमध्ये पण म्हटलेलं आहे, गीता में भी यही बोला हुआ है. अभ्यासेन तो कौंतेय वैराग्येन हृन्मणि च ह्रियते. तर या पद्धतीने इस प्रकार अभ्यास करना, मतलब किस चीज का अभ्यास करना है? Anybody who can tell me what, so that I can explain in the other The way? gap or between two thoughts. कोण आहे? Darshana. हा, दर्शन आहे. म्हणूनच दर्शना सोडून कोणी बोलणार असेल तर ठीक आहे. ठीक है, तो अभ्यास करना जो है, योर माइंड, हम बोलते हैं कि हमारे मन में हजारों विचार आए हैं, तो विचार हजारों कभी भी नहीं आते हैं. ओनली वन थॉट कम्स एट ए टाइम. Unless the first thought goes away, second thought will not come. And the gap between the two thoughts is so minimal that you think there is a stream of the thoughts. So you have to increase the time gap between the two thoughts. And time gap between the two thoughts is nirvichara avastha. उसी का आपको अभ्यास करना है. एंड दैट पतंजलि सेज अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः. नाउ व्हाट इज अ यत्न एंड व्हाट इज अ परिश्रम? That is what I always, my students will tell you all these things. But what is a yatna and what is a parishram? What is the difference between prayatna and parishram? Anybody except my students? So prayatna can be one time and parishram is consistent. One time and consistent. So how you, Patanjali says you have to do the yatna, means prayatna. So it is only one time. How can you, do you think you can achieve that abhyasa
Sir, it's the constant practice. The constant practice. Is what? It's prayatna is a constant practice. And what is the parishram then? Parishram are your efforts. So what you have said it constant effort. Huh? Yeah. गुड इवनिंग सर प्रयत्न इज मतलब आप अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे उसको करें वो और परिश्रम लगातार के बीच उसको That is to make see, the mind thoughtless. Prayatna is a goal directed effort. Yes. And parishram is without any goal, जिसको हम गधा मेहनत बोलते हैं. इसलिए मैं एग्जांपल देता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए. एक किसान, उसको अपने खेत में कुआं खोदना है. उसको पता है कि मैं कुआं खोदूंगा तो मेरे खेत में ज्यादा अनाज या ज्यादा फसल आएगी. 10 फीट का गड्ढा खोदने के बाद देखता है पानी यहाँ नहीं लगा है. दूसरी जगह जाता है, वहां गड्ढा खोदता है, 10 फीट जाता है, वहां पानी नहीं मिलता है. तीसरी जगह जाता है, चौथी जगह जाता है, 5वीं जगह जाता है. 50 फुट वो गड्ढा करता है पर 5 गड्ढे करता है. दैट इज ए परिश्रम. एक ही जगह, एक ही गड्ढा में 50 फुट खोला होता तो पानी उसको मिला होता. तो उसी तरह से आपको प्रयत्न जो करना है, अभ्यास जो करना है, वो गोल आपका है increase the time gap between the two thoughts. And निर्विचार अवस्था का जो टाइम है, जो अवस्था है, उसको बढ़ाओ. अगर आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके मन में 1 मिनट में 100 विचार आते हैं तो पहले उसको 50 करो, 50 से 10 करो, 10 से मिनट में 1 करो, फिर 1 के बाद में 2 मिनट में 1 करो, और 10 ऐसे करते करते दिन में 1 ही विचार करो, और फिर बाद में हफ्ते में 1 विचार करते करते निर्विचार अवस्था में आप स्थित हो सकते हो. तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव. तो इसीलिए यहाँ कि 1 थॉट इज ए यूनिट ऑफ माइंड, एंड व्हाट यू आर सपोज टू डू और व्हाट यू शुड डू इज इंक्रीज द टाइम गैप बिटवीन द 2 थॉट्स. उसके लिए मैं अलग अलग भी एग्जांपल देता हूँ, मगर वक्त कम होने से यहाँ इतना ही बोल के आगे चलता हूँ कि कंटिन्यूस फ्लो जो है वो जैसे समुद्र में, आप समुद्र अभी शांत है फिर भी उसमें लहरें आती रहती है, और वो लहरें आप कम नहीं कर सकते हो. तो उसको कैसे कम करना है? तो नेचर ऑफ थॉट्स इज ए नेचर ऑफ मेंटल, टाइप ऑफ थॉट इज ए नेचर ऑफ मेंटल एक्टिविटी, इंटेलेक्ट, इमोशन, मेमोरी, क्रिएटिविटी. ये सब जो विचार है, इनको अगर आप ध्येय, गिव देम द गोल, डायरेक्ट देम द प्रॉपर एमफुल. इफ एमलेस करेंगे तो कुछ नहीं होगा. दूसरा है प्रोसेसिंग ऑफ दीज थॉट्स ऑकर्स इन मनोमय कोश. तो क्या होता है? हाउ डू यू गेट द नॉलेज? ये अगर आपने सीखा है तो पता आपको होना चाहिए कि नॉलेज किसे होना है. हु वांट्स द नॉलेज? द नॉलेज इज रिक्वायर्ड बाय योर आत्मा, but atma cannot go outside and get the knowledge. So atma will talk to the manomay kosh, means मन से बात करेगा कि जाओ वही, हमको कुछ बाहर गड़बड़ है या कुछ आनंद की बातें है तो मुझे देखना है, सुनना है. तो मन तो भी बाहर नहीं जा सकता है. फिर मन बोलता है ज्ञानेंद्रियों को, सेंस ऑर्गन्स को. तो सेंस ऑर्गन्स विल unite with the subject outside and gain the knowledge, and that they will transfer it to again to the mind, and mind will give it to atma. उसी के लिए एक श्लोक भी है, आत्मा मनसा संयोजते.
मन इंद्रियेण, ये मैडम बोल के बताते, इंद्रिय अर्थेण ततो ज्ञानम, यह उपनिषद में ज्ञान कैसे होता है, ज्ञान किसे होना चाहिए। तो इंद्रिय जो हमारे है, कल ही मैं उपनिषद का वाचन करते वक्त तैतरीय में ये आया हुआ है कि इंद्रियों को इंद्रिय क्यों कहते हैं। बाद में अगर किसी को चाहिए तो मैं बाद में बताऊंगा, अभी उसका ये नहीं है। जस्ट आई रिकॉल कि व्हाई द इंद्रियस आर कॉल्ड इंद्रिय, they get the knowledge, that's why they are called as indriya. Okay, so mind like play of now the mind में वहाँ एक बार वो सब information आने के बाद your brain will analyze the things. This analysis depends on your previous experiences, and then your response to that situation is in the form of like or dislike. अगर मैंने दंगा देखा, बाहर दंगा कर रहे हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है I should be a part of that दंगा, I should vent my anger by throwing stones at police van or anything, then I will enjoy that danga. Or opposite way, if I am not able, I am averse, मुझे अच्छा नहीं लगता है क्या सब दंगा फसाद हो रहा है, तो I will run away, or I will at least try to convince the people who are making all this danga or udganga. तो ये सब जो है ये मन का तुम्हारे प्रीवियस एक्सपीरियंस जो चित्त में होते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। और इसमें लाइक्स और डिसलाइक अगर आ गया तो सेवरल चेन्स ऑफ रिएक्शंस, and these reactions either may be positive or may be negative, and positive negative reaction वो जो हमने शुरू में देखा है यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस, वैसे ही अगर यूस्ट्रेस है तो यू विल एंजॉय, यू विल परफॉर्म बेटर, डिस्ट्रेस है तो यू विल फॉल ए प्रे। तो एनी इलनेस, कोई भी बीमारी आपके शरीर में इजीली आ सकती है। तो यह सब मनोमय कोश जो है इसको आपको ठीक करना है। वो कैसे करना आगे देखते हैं। निगेटिव इमोशंस जो होते हैं तो डिस्ट्रक्टिव वायलेंट इमोशन क्या होते हैं, तो डिस्ट्रेस, अनहैप्पीनेस, एंगर, हेट्रेड, टेंशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन एक्सेट्रा। तो ये सब कभी कभी पॉजिटिव या पॉजिटिव सिचुएशन में भी ये वायलेंट रिएक्शंस आ सकते हैं। जैसे आपका रिजल्ट आता है, आप यू गेट मोर मार्क्स देन योर एक्सपेक्टेशंस, देन आप वो अभी आजकल के लड़के तो बहुत करते हैं कि यस वो कुछ मिला नहीं तो हाय है वो है सब करना शुरुआत कर देते हैं। तो ये जो है थ्रिल, एक्साइटमेंट, जॉय, पैशन, लव, ब्लिस वगैरह सब जो है ये पॉजिटिव रिएक्शन के साथ में आने वाली वायलेंट रिएक्शंस है। और फिर ये वायलेंट रिएक्शंस मनोमय कोश में अगर जाती है तो तान तनाव बढ़ता है और उसका रिजल्ट आपने देखा है, साइकोसोमैटिक इलनेस लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और एनी अदर सिचुएशन। और आजकल जब when I was a student 45 years ago, that time the science has only recognized hypertension, diabetes, some skin disorders and asthma and hyperacidity वगैरह एक 5-10 बीमारियां साइकोसोमैटिक होती। मगर आज मैं आफ्टर प्रैक्टिसिंग योग एंड साइकेट्री बोथ, I say each and every disease is a psychosomatic. हर एक डिसीज जो है वह साइकोसोमैटिक है। इसके लिए बाद में हम कभी भी चर्चा कर सकते हैं कि कौन सा डिसीज आप मुझे बोलिए, मैं वो डिसीज साइकोसोमैटिक कैसा है ये आपको समझा सकता हूँ।
तो आगे चलते हैं कि पॉजिटिव इमोशंस अगर होता है तो समाधान मिलता है, शांति मिलती है, कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर आपका होता है और रिजुवेनेशन यानी आप नवनिर्माण करने की क्षमता रखते हैं, कुछ भी काम करने में आनंद ज्यादा प्राप्त करते हो इस तरह से। तो यह नेगेटिव इमोशंस सर हम लोग यहाँ पे रुकते हैं सर, हम लोग यहाँ पे मन तक रुकते हैं, मन के आगे नहीं जाते। मन के आगे जाएंगे तो बहुत सारी पीड़ाएं होंगी और बहुत सारी तकलीफें होगी। वो तकलीफें कल हम लोग मिल लेके आएंगे। थोड़ा सा आप ये स्टॉप कर दीजिए, इसका जो समराइज है डॉक्टर हेमजीत, इसको स्टॉप कर दीजिए। I will talk only on this गीता का एक श्लोक है। Yes, please. Yeah. जस्ट 2 मिनट में मैं खत्म करता हूँ कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगस्तेषु जायते कामा कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये जो है दिस इज हाउ द स्ट्रेस स्टार्ट्स कि अगर आपके कहीं अटैचमेंट किसी विषय से हो जाती है तो दिस इज ऑल साइकिल। ये ऐसा इसका परिणाम होता है। सम ऑफ यू हु आर knowing Gita or studying Gita, they will know the details. Details we'll talk tomorrow. And I stop over here. And if there are any difficult questions or शंका अगर आपको है तो आप 5 मिनट में पूछ सकते हैं, फिर बाद में विजय जी जो आगे करना है वो करेंगे। Already Lord Krishna says in Bhagavad Gita, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते उपजायते. There is a stress. Already stress is delivered by God. तो इसमें कोई संशय नहीं है कि ये सब कुछ हमारे एंशियंट ऑलरेडी सब कुछ बताया है। तो बिफोर we are summarize all the whole or session, if any have any question, please ask one by one. Please be disciplined. योग अनुशासनम का प्रयत्न कीजिए अपने आप में लाने का, प्लीज। Anyone there to speak or ask? Okay sir, I will answer one question over here. इसमें चॅट में एक क्वेश्चन आया है. Yes. प्रभू रामचंद्र यांना वनात जायला सांगितल्यावर त्यांना ताण नव्हता, अगदी आनंदाने वडिलांची आज्ञा पाळली. आता हे का झालं याचा जर तुम्ही विचार केला, मी सांगितलं होतं की ते गुरुकुलामध्ये योग शिकले होते म्हणून हे सगळं त्यांनी सहन केलं. एव्हरीबडी नाउ टेल मी की आनंदाने ते केलं हे सगळं आपल्याला दिसतं आहे, पण सीता हरण झाल्यावर ते आनंदी राहिले का? वनामध्ये गेल्यावर या सगळ्या गोष्टी झाल्यात, खाणं पिणं सगळं करायला लागलं. वनामध्ये राजपुत्राला वनामध्ये राहणं इज नॉट ए इझी थिंग. और काय तुम्ही म्हणाल ते ताण असणार आहे, फक्त त्यांनी ते ताणाचं रिएक्शन जी आहे ती योगामुळे त्यांना कमी दिसली आहे. सर आई विल ऐड दिस इफ यू आर परमिटेड मी. यस यस यस. हाँ देखिए, गुरुकुल के समय में श्री राम जी वशिष्ठ मुनि के घर पे जाके गुरुकुल जो भी परंपरा थी वो लेते थे, जो उनकी ज्ञान लेने का अर्जन करने का तरीका था। वहां पे ऑलरेडी वशिष्ठ गुरु जी ने उनको ज्ञान दिया था या उनको साधना दी थी कि मनः प्रशमन इति योगः. यू हैव टू पैसिफाई योर माइंड. हाउ संसार उत्तरणे शब्देन युक्ति, संसार उत्तरणे युक्ति शब्देन योग कथ्यते. संसार की भव सागर में से बाहर निकलने का नाम योग है. उनकी ताकत बहुत बड़ी थी. स्ट्रेस तो सबको आता है, जंगल में से लेके आज के राज में जो जंगल सीमेंट का जंगल है, यहाँ पे सभी लोगों को स्ट्रेस आता है, लेकिन उस स्ट्रेस में से कैसे बाहर निकलने का, हाउ टू गेट रीड ऑफ, how to face the stress. That's why I gave you the example of fight and flight. These are the two reactions. Because of the short of time, I could not explain fight and flight.
ये 2 मिनट में मैंने बोला है। मेरे क्लास में मैं इसको कम से कम आधा घंटा मुझे लगता है समझाने के लिए। इट्स ओके, बट why these are the two well known reactions? There are n number of other reactions also. सर सिंपल टेक्निक ये है कि आपको आपकी ताकत बढ़ानी है। यू हैव टू मैनिफेस्ट योर पोटेंशियल, दैट्स ओनली। यू हैव टू चेंज योर व्यू टुवर्ड्स द स्ट्रेस। ओके, आई विल क्वेश्चन माधुरी पाटिल, प्लीज आस्क। सर आई हैव अ क्वेश्चन। Yes, हम लोग please. जब साइकोसोमैटिक बोलते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि योगा क्लासेस में या योगा सेशंस में लोग आते हैं हेल्थ इशू